वेलकम टू पार्ट 2 और 3। आई डोंट रिमेम्बर कि ये कौन सा पार्ट है ऑफ चैप्टर 5 ऐसे। तो शुरू करते हैं फ्रॉम स्ट्रैटेजिक चेंज। तो changes in the entire environmental forces often require business to make modification to their existing strategies and bring out new strategies. तो मतलब environmental forces में जब changes आएंगे ना तो मतलब वो require करेगा business को अपनी जो existing strategy है उसको change करना और एक नई strategy को लेके आना. So यही बोल रखा है, the changes in the environmental forces require business to make modifications in the existing strategies and bring out new strategies. अब strategic change ना एक complex process है. It is a complex process. Okay, complex process. ठीक है. That involves a corporate strategy focused on a new market, product, services, new ways of doing business. Steps to initiate strategic changes. अब strategic change को initiate करने के लिए steps क्या steps जो है हमको required है. तो recognize करो need for change पहला. तो first step is to 3 steps है. ठीक है. पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज करना द नीड फॉर चेंज. द फर्स्ट स्टेप डायग्नोस विच फेसेट्स ऑफ द प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर आर स्ट्रैटेजी सपोर्टिव. कौन से फेसेट्स जो है प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर की स्ट्रैटेजी सपोर्टिव है और कौन से नहीं है. तो पहला स्टेप है डायग्नोस करना विच फेसेट्स ऑफ द प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर आर स्ट्रैटेजी सपोर्टिव एंड विच आर नॉट. द फर्स्ट स्टेप रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज. ठीक है. रिकॉग्नाइज करो ज़रूरत चेंज करने की. To recognize the need for change, the first step is to diagnose which facets of present corporate culture are strategy supportive and which are not. ये कैसे दिस बेसिकली मीन्स गोइंग. इसका क्या मतलब होता है कि गोइंग फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग इन्वॉल्विंग अप्रेजल ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज. Maybe through SWOT analysis and then determining where the lacuna lies and scope for change exists. तो पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज करना नीड फॉर चेंज, जिसमें ये कहता है कि इट डायग्नोसिस. The first step is to diagnose the facet of present corporate culture, whether it is strategy support, which sorry, face which face the first step is to diagnose which facets of the present corporate culture are strategy supportive and which are not. These basically mean going through environmental scanning through appraisal of both internal and external capabilities, maybe through SWOT analysis, and then determining where the lacuna lies and scope for change exists. दूसरा है create करना a shared vision to manage change. और तीसरा इंस्टीट्यूशनलाइज करना चेंज को. तो पहला रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, क्रिएट अ शेयर्ड विजन टू मैनेज चेंज एंड देन इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज. इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज. फटाफट बोलने के चक्कर में थोड़ा सा ऐसे फंबल हो जाता है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड कोइंसाइड. तो इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव और जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका ऑब्जेक्टिव जो है कोइंसाइड करना चाहिए. उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. ये पॉसिबल तभी है अगर मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है फॉलो करेंगे एक शेयर्ड विजन को. ठीक है. तो सीनियर मैनेजर्स को कॉन्स्टेंटली और कंसिस्टेंटली जो है कम्युनिकेट करना चाहिए उनका विजन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, एंड दे हैव टू कन्विंस ऑल दोज कंसर्न विद द that the change in business culture is not superficial or cosmetic. ठीक है. The actions taken have to be credible, highly visible, and unmistakably indicative of management seriousness to new strategic initiatives and associated changes. So objectives of both individuals and organizations should coincide. There should be no conflict between them. This is possible only if the management or organization follows a shared vision. Senior managers need to constantly and consistently communicate the vision to all the organization key members. They have to convince all those concerned that the change in the business culture is not superficial or cosmetic. The actions taken have to be credibly highly visible, unmistakably indicative of management seriousness to new strategic initiatives and associated changes. The objectives of both individuals and organizations should coincide. There should be no conflict between them.
This is only possible if the management and organization members follow a shared vision. Senior managers को है need to consistently and constantly communicate करना चाहिए उनके vision को to all organization के members. They have to convince all those concerned that a change in business culture is not superficial or cosmetic. Change जो है business culture में वो superficial और cosmetic नहीं है. और actions जो है taken have to be credible, highly visible, and unmistakably indicative of management seriousness to new strategic initiative and associated changes. अब इंस्टीट्यूशनलाइज करना चेंज को, दिस इज बेसिकली एन एक्शन स्टेज, ये एक एक्सटेंड स्टेज है जो रिक्वायर करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज स्ट्रैटेजी। मतलब अब हमने स्ट्रैटेजी तो चेंज मतलब दूसरी स्ट्रैटेजी जो है वो तो बना ली, बट उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो रिक्वायर करता है ये तो ये एक एक्शन स्टेज है बेसिकली विच रिक्वायर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज स्ट्रैटेजी। और क्रिएट और सस्टेन करना डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड चेंज इज एसेंशियल. Create and sustain a different attitude towards change is essential to ensure that the firm does not slip back into old ways of thinking or doing things. Different attitude जो है क्रिएट और सस्टेन करना ज़रूरी है इंश्योर करने के लिए फर्म जो है वापस पुराने ही मेथड्स पे नहीं चली जाती है। ठीक है। कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिन्यूअल शुड बी अ फंडामेंटल एंकर ऑफ द न्यू कल्चर ऑफ द फर्म. चेंज प्रोसेस मस्ट बी रेगुलरली मॉनिटर्ड. कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिन्यूअल शुड फंडामेंटल एंकर ऑफ द न्यू कल्चर ऑफ द फर्म. चेंज प्रोसेस जो है रेगुलेटरी मॉनिटर और रिव्यू होना चाहिए एनालाइज करने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ चेंज. और कोई भी डिस्क्रिपेंसी या डेविएशन है वो शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पर्सन्स कंसर्न सो दैट द नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस आर टेकन. इट टेक्स टाइम फॉर द चेंज कल्चर टू प्रिवेल. This is basically an action stage which requires implementation of change strategy. Creating and sustaining a different attitudes towards change is essential to ensure that firm do not slip back to old ways of thinking or doing things. Capacity for self-renewal should be a fundamental anchor of the new culture of the firm. And change process जो है regularly monitor and review होना चाहिए to analyze the after effects of change. और कोई भी डिस्क्रिपेंसी या डेविएशन जो है नोटिस में आना चाहिए ऑफ पर्सन्स कंसर्न सो दैट द नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस आर टेकन. इट टेक्स टाइम फॉर द चेंज कल्चर टू प्रिवेल. तो रिकॉग्नाइज करो नीड फॉर चेंज जिसमें हमको प्रेजेंट कॉर्पोरेट कल्चर कौन सा सपोर्टिव है या नहीं है वो डायग्नोस करना है. एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू स्वॉट एनालिसिस के थ्रू हो सकता है. फिर हमको क्रिएट करना है शेयर विजन टू मैनेज चेंज. जैसे कि मतलब इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उनके ऑब्जेक्टिव सेम होने चाहिए और उसको शेयर करना चाहिए अपना विजन और मतलब जो है ना चेंज ऐसे कन्विंसिंग लग रहा चाहिए कि हाँ भाई सुपरफिशियल और कॉस्मेटिक नहीं है, सही में चेंज है. और वो अपने एक्शंस को लेके जो है क्रेडिबल और मतलब उनके एक्शंस दिखे और उनकी सीरियसनेस दिखे टू न्यू स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एंड एसोसिएट चेंजेस. और फिर इंस्टॉलेशन स्टेज में हमको एक्सचेंज स्टेज मतलब अब एक्शन में लानी है जो हमने स्ट्रैटेजी चेंज करी उसको इम्प्लीमेंट करनी है. डिफरेंट एटीट्यूड क्रिएट और सस्टेन करना ताकि हम पुराने वेज और थिंकिंग की तरफ ना चले जाएं. कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एक फंडामेंटल एंकर है ऑफ द न्यू कल्चर ऑफ द फॉर्म. चेंज प्रोसेस जो है हमको रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए एंड रिव्यू करना चाहिए टू एनालाइज द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ चेंज. और कोई भी डिस्क्रिपेंसी या डेविएशन है वो नोटिस में आनी चाहिए ऑफ द पर्सन कंसर्न सो दैट नेसेसरी करेक्टिव एक्शन जो है लिया जा सके. नाउ कर्ट ल्यूइन्स मॉडल ऑफ चेंज. To make the change lasting, Kurt Lewin proposed three phases: unfreezing the situation, refreezing, and returning to normal. Okay, so पहला ये है unfreeze the process of unfreezing simply makes the individuals aware of the necessity for change and prepare them for such change. तो unfreezing की सिचुएशन में हमको तो पहले इंडिविजुअल्स को अवेयर करना है कि क्यों ज़रूरत है चेंज करने की और फिर उनको प्रिपेयर करना है उस चेंज के लिए. ठीक है. तो प्रोसेस ऑफ अनफ्रीजिंग सिंपली मीन्स मेक्स द इंडिविजुअल्स अवेयर ऑफ द नेसेसिटी फॉर चेंज एंड प्रिपेयर्स देम फॉर सच अ चेंज. अब लिवन प्रपोज करता है दैट चेंजेस शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सडन और अनअनाउंस चेंज जो है सोशली डिस्ट्रक्टिव और मॉरल लोवरिंग हो सकता है. भाई हमको ऐसे नहीं कि अचानक से ही आ गए कि अब ये चेंज हो गया. पहले उनको प्रिपेयर करो, उनको उसकी ज़रूरत बताओ उसके बाद. क्योंकि अगर हम सडनली और
अचानक से चेंज करने के बिना अनाउंस किए, तो वो सोशली डिस्ट्रक्टिव और मॉरल रोविंग हो सकता है मेंबर्स ना चाहें वो चीज़, क्योंकि वो बहुत पहले से वो कुछ और फॉलो करते हुए आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई। सो प्रोसेस ऑफ अनफ्रीजिंग सिंपली मेक्स द इंडिविजुअल्स अवेयर फॉर ऑफ द नेसेसिटी फॉर चेंज एंड प्रिपेयर्स देम फॉर सम चेंज। और ल्यूइन कहता है कि भाई चेंजेस शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सडन एंड अनअनाउंस्ड चेंज वुड बी सोशली डिस्ट्रक्टिव एंड मोरल lowering. Management must pave the way for the change by first unfreezing the situation so that members would be willing and ready to accept the change. मस्ट पेव द वे फॉर द चेंज, अनफ्रीज करके सिचुएशन को ताकि मेंबर्स जो है विलिंग हो और रेडी टू हो एक्सेप्ट चेंज। अनफ्रीजिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जो ब्रेक डाउन करता है ओल्ड एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को, कस्टम एंड ट्रेडिशंस को, सो दैट दे स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट. So it's the process of breaking down the old attitudes and behaviors, custom and traditions, so that they start with a clean slate. Unfreezing is the process of breaking down the old attitudes and behaviors, customs and traditions, so that they start with a clean slate. So, unfreezing is the process of breaking down the old attitudes and behavior, customs and traditions, so that they start with a clean slate. This can be achieved by making announcements, holding meetings, and promoting the new ideas throughout the organization. अब चेंज करना टू द न्यू सिचुएशन में तीन तरीके हैं: कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन. ठीक है, हम चेंज करेंगे सिचुएशन को तीन वे से: कंप्लायंस से, आइडेंटिफिकेशन से या इंटरनलाइजेशन से. ठीक है, और फिर रीफ्रीज करना. अब अनफ्रीजिंग हो गया तो मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, फिल्ली प्रिपेयर्ड एक्सेप्ट करने के लिए चेंज. अब उनके बिहेवियर पैटर्न्स को हमें देखना है. तो दीज आर कंप्लायंस. या तो हम है ना पनिशमेंट या रिवॉर्ड रख देंगे कि भाई पनिशमेंट है अगर तुमने नहीं किया तो, और अच्छा किया तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा. तो उस वजह से मतलब फोर्सफुली कह दिया ना, एकदम स्ट्रिक्टली. इट इज अचीव बाय स्ट्रिक्टली एनफोर्सिंग द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्ट्रेटेजी फॉर गुड और बैड बिहेवियर. फियर ऑफ पनिशमेंट, एक्चुअल पनिशमेंट और एक्चुअल रिवॉर्ड सीम्स टू चेंज द फियर ऑफ बैड. आइडेंटिफिकेशन में बोलते हैं कि हम भाई तुम और लोगों को देख लो अपने जैसे, जो मतलब वो अडॉप्ट कर चुके हैं, और फिर उनके जैसे बनने की कोशिश करो. सो आइडेंटिफाई मतलब ट्राई करके देख लो भाई. Identification occurs when members are psychologically impressed upon to identify themselves with some given role models whose behavior they would like to adopt and try to become like them. So, identification occurs when members are psychologically impressed upon to identify themselves as some with some given role models whose behavior they would like to adopt and try to become like them. तो आइडेंटिफिकेशन जो है अकर होता है जब मेंबर्स जो है साइकोलॉजिकली इम्प्रेस्ड होते हैं to identify themselves with some given role models जिनका behavior they would like to adopt and try to become like them. अब इंटरनलाइजेशन जो है इन्वॉल्व करता है इंटरनल चेंजिंग ऑफ द इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस इन ऑर्डर टू एडजस्ट टू द चेंजेस इंट्रोड्यूस. दे हैव गिवन फ्रीडम टू लर्न एंड अडॉप्ट न्यू वे इन ऑल circumstances. Internalization involves carrying internal changing of the individual's thought process in order to adjust to the changes introduced. They have given freedom to learn and adopt new behavior in order to succeed in the new set of circumstances. अब refreezing. Refacing तब होता है जब new behavior becomes a normal way of life. अब जो है हमने ये जो new behavior अब वो normal हो गया हमारे लिए. New behavior जो है replace कर देगा former behavior को completely for successful and permanent change to take place. In order for the new behavior to become permanent, it must be continuously reinforced so that this new acquired behavior does not diminish or extinguish. अब इस न्यू बिहेवियर को परमानेंट रखने के लिए कंटिन्यूसली रीइंफोर्स होना चाहिए ताकि ये न्यू एक्वायर्ड बिहेवियर जो है डिमिनिश और एक्सटिंग्विश ना हो. चेंज प्रोसेस जो है एक वन टाइम एप्लीकेशन नहीं है बल्कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. Due to dynamism and ever-changing environment, the process of unfreezing is cyclical one and remains continuously in action. तो वहाँ हमारा जो है स्ट्रैटेजिक चेंज हो गया, कंप्लीट हो गया. स्ट्रैटेजिक चेंज में पहले तो रिकॉग्नाइज करना नीड फॉर चेंज, क्रिएट करना शेयर विजन, इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए चेंज को, फिर उसके बाद हमको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है चेंज को,
एंड देन फिर वो कर्ट ल्यूएन की थ्योरी में बोलते हैं कि पहले अनफ्रीज करो सिचुएशन को, लोगों को बताओ कि क्यों ज़रूरत है चेंज की, उनको उसके लिए प्रिपेयर करो, ये सडन और अनअनाउंस नहीं होना चाहिए। अनफ्रीजिंग मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओल्ड बिहेवियर, एटीट्यूड, कस्टम, ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल के ट्रेडिशन। फिर उसके बाद री अनफ्रीज के बाद चेंज करो कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन इंटरनलाइजेशन के थ्रू, और उसके बाद रीफ्रीज करो मतलब जब न्यू बिहेवियर है जो फॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। नाउ हाउ डज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क? यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज़ करना डेवलप करने के लिए फ्रेश इम्प्रूव या न्यूली एंटायरली न्यू कंपनी प्रोसीजर्स गुड्स सर्विसेज, तो उसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। Use of digital technologies to develop fresh, improve, or entirely new company procedures, goods, or services known as digital transformation. So, use of digital technologies to develop fresh, improved, entirely न्यू कंपनी प्रोसीजर्स गुड्स और सर्विसेज, तो उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ये एक फंडामेंटल एडजस्टमेंट है जो चैलेंजिंग हो सकता है आइडेंटिफाई के लिए एंड इवन मोर चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट। फंडामेंटल एडजस्टमेंट, चैलेंजिंग टू आइडेंटिफाई एंड चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट। अब चेंज मैनेजमेंट, इसकी वजह से चेंज मैनेजमेंट जो है आती है पिक्चर में। ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं एंड कैरी आउट कर सकते हैं चेंजेस टू देयर ऑपरेशंस इंक्लूडिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस विद द एड ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ change management. When implemented correctly, change management may assist firms in overcoming the obstacles posed by the digital transition and reaping the full rewards of their investment. चेंज मैनेजमेंट कैसे अपीयर होती है व्हेन अप्लाइड टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? तो चेंज मैनेजमेंट डिजिटल ट्रांजिशन में 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है चेंज के। तो डिफाइन करना पहले तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करो ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। फिर असेस करो करंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और आइडेंटिफाई करो गैप्स। करंट डिफाइन करो पहले तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। Define करना goals and objectives of the transformation. Define the goals and objectives of the transformation. Then assessing the current state of the organization or identify करना gaps. फिर create a roadmap for change that outlines the steps needed to reach the desired state. फिर implement and manage करना change को at every level of the organization. तो change management digital transition में consist करती है 4 essential elements। पहले तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना और ट्रांसफॉर्मेशन की असेस करना, करंट स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिफाई करना गैप्स, फिर क्रिएट करना अ रोड मैप फॉर चेंज जो आउटलाइन करेगा द स्टेप्स नीडेड टू रीच द डिजायर्ड स्टेट। इम्प्लीमेंटिंग एंड मैनेजिंग द चेंज एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इम्प्लीमेंट और मैनेज करना चेंज को एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Define the goals and objectives of the transformation. Then डिफाइन करो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, फिर असेस करो करंट स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की, फिर आइडेंटिफाई करो गैप्स, क्रिएट करो रोड मैप फॉर चेंज, क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर चेंज दैट आउटलाइंस दी स्टेप्स नीडेड टू रीच डिजायर्ड स्टेट। फिर इम्प्लीमेंट करना और मैनेज करना चेंज को एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो चेंज मैनेजमेंट डिजिटल ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। 4 एलिमेंट्स है 4। पहला तो डिफाइन करना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फिर असेस करना करंट स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई करना गैप्स, क्रिएट करना रोड मैप चेंज के लिए जो आउटलाइन करता है स्टेप्स नीडेड टू रीच द डिजायर्ड स्टेट, फिर इंप्लीमेंट मैनेज करना चेंज एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। To navigate a digital transformation successfully, each of these elements is necessary, but what matters most is how they collaborate to support organizations in achieving their goals. हाउ डज चेंज मैनेजमेंट वर्क? तो चेंज मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, सेट ऑफ टूल्स है एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो यूज किया जाता है मैनेज चेंज करने के लिए एन ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ प्रोसेस और सेट ऑफ टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज टू मैनेज चेंज। बेसिकली मैनेज करने के लिए चेंज को, मैनेज चेंज, ठीक है। ये असिस्ट करता है इन मेकिंग चेंजेस इन अ सेफ एंड रेगुलेटेड मैनर, reducing the possibility of detrimental effects of the company.
It assists in making changes in a safe and regulated manner, reducing the possibility of detrimental effects on the company. Safe and regulated manner may reduce करता है possibility of detrimental effects. Any sort of organization, including enterprise organization, government bodies, and even families, can utilize change management to manage changes. Change management model might come in wide variety में, but they all have key things in common. Include करता है creating a clear vision for the change, involving stakeholders in the process, coming up with a plan for putting the change into action, and keeping an eye on the results. अब रोल क्या है चेंज मैनेजमेंट का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो एनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करने में टेक्नोलॉजी टू क्रिएट न्यू वैल्यू फॉर कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ एंड अदर स्टेक होल्डर्स। और अब एक गुड चेंज मैनेजमेंट जो है स्ट्रैटेजी जो है नेसेसरी है फॉर सक्सेसफुल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी। एक प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड चेंज मैनेजमेंट जो है हेल्प कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफाई करने में पैरामीटर्स एंड गोल्स ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिटरमाइन करने में विच प्रोसीजर्स एंड टूल्स जो है नीड टू बी मॉडिफाइड, एक प्लान बनाने में फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इम्प्रूवमेंट्स, इन्वॉल्व करेगा स्टाफ मेंबर्स और पार्टीज को इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ट्रैक करने में प्रोग्रेस एंड मेक रिक्वायर्ड कोर्स करेक्शंस। Specify the parameters and goals for the digital transformation. Parameters and goals. Specify parameters and goals. ठीक है. डिटरमाइन करने में कि कौन से प्रोसीजर टूल्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है. मेक अ प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इम्प्रूवमेंट्स. इन्वॉल्व करेगा स्टाफ मेंबर्स और पार्टीज को इन्वॉल्व इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. ट्रैक करेगा प्रोग्रेस एंड मेक रिक्वायर्ड कोर्स करेक्शंस. Change management key strategies for digital transformation. One of the most important area of focus for guaranteeing a successful transformation is change management. Businesses nowadays increasingly find themselves responsible for managing more than simply their staff, clients, and products. Additionally, they are handling the introduction of new technology, the unexpected dimensions of new market opportunities, and changes in the customer preferences regarding the brands they choose, interact with, hold to. In essence, modern firms must be able to manage change. They must modify their अब 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है मैनेज करने के लिए चेंज फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वो है बिगिन एट द टॉप, रिड्यूस डिस्ट्रप्शन, इंश्योर दैट चेंज जो है नेसेसरी और डिज़ायर्ड दोनों है, एंड इनकरेज करता है कम्युनिकेशन को। और एक और था कुछ, है ना, 5 बोला है ना। रिकॉग्नाइज करना कि चेंज जो है एक नॉर्म है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज नॉर्म एंड नॉट एनी एक्सेप्शन। एनकरेज करना कम्युनिकेशन, रिड्यूस करना डिसरप्शन, सॉरी बिगिन करना टॉप से, और इंश्योर करना कि चेंज जो है नेसेसरी है और डिज़ायर दोनों है। अब एक फोकस इन्वेस्टेड और यूनाइटेड लीडरशिप जो सेम पेज पे है अबाउट द कंपनी स्विचेस लेफ्ट इन चेंज एंड बिगिंस विद कल्चर दैट मोटिवेट rest of the organization to accept change can only be generated and promoted in this way. Focus invested united leadership जो same page पे है about the company's futures left reflected in change that begins at the top, और culture जो motivate करेगा rest of the organization को accept करने के लिए change, वो इसी वे में जनरेटर प्रमोट हो सकता है। और फैक्ट जो डिसीजन मेकर्स जो है अनअवेयर ऑफ हाउ टू प्रॉपर्ली हैंडल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द इफेक्ट्स इट विल हैव द फॉर्म strategy in place, introducing too much fast become a major issue down the road.
Employer का perception of what is required or desirable change can differ by department, rank, or performance history. It's crucial to lessen how changes affect staff. The introduction of new tactics or technology intended to improve management and corporate operations cause employer concern about change. Possible to reduce workplace. तो यहाँ हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट तो क्या ही हो जाता है, मतलब इसका एक, अब बाकी का जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाय बाय गाइस।